ऑल राइट नाउ, तो अभी इसमें in today's class we'll start with angle between two vectors. Okay, angle between two vectors. Okay, now angle between two vectors समझने से पहले you should understand two properties of vectors. ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि if a vector is shifted parallel to itself, in space, then the vector does not change. ये एक पॉइंट तुमको मालूम होना चाहिए. ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि लेट्स से यू हैव अ वेक्टर लाइक दिस. ओके, दिस इज अ वेक्टर ए. नाउ if I try to move this parallel to itself, ठीक है, मतलब let's say I moved it parallel to itself and now it is here, ऐसे इधर मूव कर दिया मैंने इसको. ठीक है, you can see that they are parallel, so the vector is not going to change. It is the same vector A. You can shift it parallel to itself. ठीक है, anywhere you want. All right. Ab, that is one important point that you should understand. The other point that you should know is कि if a vector is rotated at an angle other than multiple of 2 pi मतलब 360 degrees, पता है ना, 360 degrees, then the vector will change. ठीक है, इसका मीनिंग समझो कि अगर एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज आवर वेक्टर ए. ठीक है, दिस इज आवर वेक्टर ए. नाउ इफ यू रोटेट दिस वेक्टर बाय अ सर्टेन एंगल, अगर इसको मैंने रोटेट कर दिया अबाउट इट्स टेल फॉर एग्जांपल, तो इसको मैंने टेल के अबाउट रोटेट कर, आई डिडंट चेंज द मैग्नीट्यूड. ठीक है, आई हैवंट चेंज द मैग्नीट्यूड, आई जस्ट रोटेटेड इट थ्रू अ सर्टेन एंगल थीटा. ठीक है, थीटा एंगल से इसको रोटेट करा दिया. नाउ दिस इज नॉट द सेम वेक्टर, इट इज a different vector. This vector is b vector. ठीक है, you should understand that a vector is not equal to b vector in this case. Okay, very important point. अगर लेकिन तुम इसको 360 डिग्रीज घुमाते हो, if you rotate it through 360 degrees or a multiple of 360 degrees, you can imagine it's going to come back to its original position like this, है ना. अगर इसको 2 पाई एंगल से घुमाया तो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, इसलिए मैंने वो पर्टिकुलर पॉइंट लिखा, एंड अदर देन अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्रीज. ऑलराइट, सो दीज टू पॉइंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके, सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे डिफाइंड है देखते हैं. लेट्स से you have two vectors, this is vector a, मान लो this is vector a,
and you have another vector b like this. Okay, this is vector b. Now angle between them, angle between a and b, a vector and b vector, is the smallest angle when their tails or heads are joined together. तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखते हैं. तो अगर मैं मान लो कि दिस राइट हियर इज आर ए वेक्टर, ये अपना ए वेक्टर हुआ, इस बी वेक्टर को क्या कर सकता हूं, स्पेस में शिफ्ट कर सकता हूं. इस बी वेक्टर को मैंने स्पेस में शिफ्ट किया एंड आई जॉइंड द टेल्स ऑफ ए एंड बी. देखो इस बी वेक्टर को मैंने, बी वेक्टर और ए वेक्टर के टेल्स को मैंने ज्वाइन कर दिया. दिस इज आवर बी वेक्टर. So now you can see that there are two angles. ठीक है, there are two angles. First angle is this one. ये देख सकते हो इसको, let's call this angle theta, and the other angle is this one. This is the larger angle. Let's call this phi. तो अपना एंगल कौन सा हुआ जो चाहिए, as I said, smallest angle. ठीक है, तो when I say smallest angle, कौन सा, which one fits the description? ये है ना, theta, and phi नहीं होगा. All right, so what do ये इधर से देख सकते हैं, the smallest angle. Now the other point that I wrote is either the tails or the heads. Now heads को भी join कर सकते हो. Heads को कैसे join कर दे, तो think about it. Let's parallelly shift these two vectors so that their heads are joined together. मतलब ये this right here is A, this is our A vector, and B vector जो है वो ऐसा है. Okay, this is our B vector. Okay, now अब इधर भी देख सकते हो कि there are two angles. This is the smallest angle. ये देख सकते हैं कि this is theta, and दूसरा एंगल कौन सा है, this one. ये क्या है, phi. Okay, तो you can see that, you can clearly see that ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, and ये वाला चलेगा. Smallest angle, that's the idea. ठीक है, smallest angle between two vectors when their tails or heads are joined together. ठीक है, तो you can write it like this. Sorry, या तो ये केस करो, या तो टेल्स ज्वाइन करो, या तो हेड्स ज्वाइन करो. ठीक है, क्या तुम लोगों को इतना पार्ट समझ आया? ओके, सो अब देखो, देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज हियर. द अदर पॉसिबिलिटी इज दैट, लेट्स से दैट you join the tail of B to the head of A, tail of B to the head of A. ये ऐसा हो गया. दिस वाज आवर A वेक्टर, ये अपना B वेक्टर हुआ. एक सेकंड, इसको ऐसे लिख देता हूं. दिस इज आवर B वेक्टर एंड दिस इज आवर A वेक्टर. ठीक है, now from these two diagrams you can see that, you can imagine this thing कि if you just extend, जो हेड है, हेड को एक्सटेंड करो. कैसे, देखो ऐसे, हेड को हल्का सा एक्सटेंड कर दो. ओके, हल्का सा एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल राइट हियर इज थीटा. You can also imagine that. Okay, that is one way of doing this. The other way is, for example, तुमने B के हेड के साथ, B के हेड के साथ, this is B,
बी के हेड के साथ ए का टेल ज्वाइन कर दिया। देर आर दीस आर द फोर पॉसिबिलिटीज, राइट? या तो दोनों के टेल्स ज्वाइन करो, या तो दोनों के हेड्स ज्वाइन करो, या तो ए के हेड को बी के टेल से ज्वाइन करो, या फिर बी के हेड को, एक सेकेंड, बी के हेड को ए के टेल से ज्वाइन करो, ठीक है? सो दिस आर जो भी पॉसिबिलिटीज है, मैंने सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो उसमें से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो बता रहा हूँ। नाउ ऐसे केसेस में व्हेन हेड एंड टेल्स आर जॉइन टुगेदर, जो हेड है जो ज्वाइन किया उसको, उस लाइन को एक्सटेंड करना। इस लाइन को एक्सटेंड करने पे ये देख सकते हैं कि दिस राइट हियर इज आर थीटा। ओके, नाउ बाय डेफिनेशन, एक्चुअली बाय डेफिनेशन जो है वो उनके टेल्स पे आता है। टेल्स को ज्वाइन करने पे जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो तो मैंने एक्स्ट्रा हेड भी लिख दिया। तो देखो देर आर कितने पॉसिबिलिटीज आ गए? फोर पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 एंड 4, ये चार पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? नाउ लुकिंग एट दीज पॉसिबिलिटीज, क्या पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितना है? थीटा का मिनिमम वैल्यू, ऐसा लिखता हूं, एक मिनट, सबस्क्रिप्ट में थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। एंड थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? इट इज 180 डिग्रीज। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज 180 डिग्रीज। दिस कुड बी कंफ्यूजिंग, 180 डिग्री या पाई रेडियन लिख देता हूं, पाई रेडियन। दिस कुड बी कंफ्यूजिंग बिकॉज एक सिंपल सा चीज इमेजिन करना, अगर मान लो तुमने ये इसी केस में इसका जो फर्स्ट डायग्राम है उसको देखो, मान लो तुम बी को रोटेट करते गए, बी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते गए, रोटेट करते गए, रोटेट करते गए, रोटेट करते गए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? थीटा बढ़ते जा रहा है। कहां तक बढ़ेगा? 180 तक। जैसे थीटा 180 हो गया तो देख सकते हो कि ऊपर भी 180, नीचे भी 180 है। जैसे ही 181 डिग्रीज हो जाएगा तो नीचे वाला एंगल छोटा है 179, तो थीटा वुड बी 179। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा अगर आपको इमेजिन करना है तो आई जस्ट एक रफ डायग्राम बना देता हूं कि मान लो कि दिस इज आर ए वेक्टर एंड ये जो बी वेक्टर है इसके साथ ये बी वेक्टर का, बी वेक्टर को तुम क्या करने वाले हो? यू आर गोइंग टू रोटेट इट, ठीक है? इसको ऐसे रोटेट करा रहे हो, ऑलराइट? तो ये अपना थीटा है। तो देख सकते हैं कि ये रोटेट करते 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 किधर तक जाएगा? रोटेट करते करते दिस इज आर ए, एक सेकंड, ये ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर, और ये जो एंगल है ये देख सकते हो कि दिस इज कितना? थीटा इज इक्वल टू पाई। ना इसको थोड़ा और रोटेट कर दो तो क्या हो जाएगा? देख सकते हो कि थीटा भी पाई, ये भी पाई। एक सेकंड, ये जीरो नहीं है, इट इज थीटा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं इसको रोटेट करते करते थोड़ा और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। मान लो कि ये, एक सेकंड, ये अपना ए हुआ एंड अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, देखो। तो अब तुम ये बोलोगे कि यहां से यहां का एंगल लेट्स से इट इज 181, जस्ट एग्जांपल, ठीक है? थीटा इज इक्वल टू 181 डिग्रीज। तो ये अपना एंगल नहीं होगा, दिस नाउ बिकम्स, दिस इज नो मोर थीटा, दिस नाउ बिकम्स व्हाट? फाई, the larger angle, ठीक है? This is the larger angle because now the smaller angle is what? Theta is this one, theta is equal to 179. Okay, I hope you understood this. That is the idea of angle between two vectors. Okay, the problem says k, find theta in the following cases. Following cases, ठीक है? Find theta in the following cases. First one,
ये क्वेश्चंस जो है एक एक करके तुम सॉल्व करते जाओ एंड विल सी कि क्या क्या हो सकता है इसका। Draw it in your notebooks and see, I'll name them also. This is A and this is B. This is A, this is B. एक सेकंड, चलो तीन ही क्वेश्चन ठीक है। I'll do one more question. Sorry, give you one more question. Three. This could be good. This is going to be a good question. This is A. This is B. Then इसमें और इंफॉर्मेशन जो दे सकता हूँ वो ये है कि इसके सेंटर से, सॉरी, and this information, this is a circle and this is 120 degrees. This is just for practice so that you get an idea what to do. Okay, so come on, try these questions. ठीक है, so the first one you can see that if you join the tail of B, अगर B को एक्सटेंड करके देखो, यहाँ पे इसका पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज B राइट हियर. तो देखो कितना आया है इसके बीच का एंगल. ये अगर ये कितना आया, दिस इज गोइंग टू बी, इफ this is 130, then this angle is 130, right? This angle is 130, so that means this angle is going to be 130. So the answer is, in this case, theta is equal to 130 degrees. Okay, now next, इसमें क्या कर सकते हो कि A को देखो, क्या कर दो, A को या तो B को, किसी को भी ले जाओ. मैं A को ले जाता हूं, ठीक है. A को अगर ले जाता हूं यहाँ पे, एक सेकंड, एक काम कर रहा हूँ, एक और चीज कि जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मैंने ये अलग से क्वेश्चन में ऐसा था, तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड ये जो बी वेक्टर है उसको मैं थोड़ा और पतला ड्रॉ करने वाला हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया दैट इट इज नॉट द एक्चुअल वेक्टर. उसको मैंने थोड़ा वो खाली उसका उसको लेके मैं साइड गया था, बस इतना है. दिस इज आवर बी वेक्टर. ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर को देखो ऐसे ले जाता हूं, तो ए वेक्टर अपना ये हो जाएगा, दिस इज आर ए वेक्टर राइट हियर. तो दिस इज आर ए वेक्टर. नाउ इसमें देख सकते हो कि अगर मैं रेफरेंस के लिए यहां पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, फॉर जस्ट फॉर रेफरेंस, तो यू कैन सी दैट दिस
right here is 53. This is 53, देख सकते हैं, and this here is 60 degrees. तो देख सकते हैं कि टोटल थीटा कितना हुआ. Theta is going to be 53 plus 60, 103 degrees. Okay, so the answer is 103 degrees for this question. उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में भी what I'll do is कि I'll bring this one down. क्या बोलते हैं, एक हाँ, इसमें है ना एक और चीज कर सकते हैं, अपने ना ये लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं. I'm going to do that in this question. ये देखो, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, देखो ऐसे देख सकते हैं. ये जो ए वेक्टर है इसको मिटा रहा हूं, ये ए वेक्टर हुआ, ठीक है. एंड इसको अगर इस लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं, देख सकते हैं कि इस लाइन को भी यहां से मैं एक्सटेंड कर दूं, तो दिस इज द एंगल बिटवीन देम. थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करो, यू विल सी दैट दिस इज द एंगल बिटवीन देम. नाउ यू कैन सी दैट कि अगर ये 120 है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60, तो द एंगल बिटवीन देम इज गोइंग टू बी 120 डिग्रीज. सो थीटा क्या रहेगा, 120 डिग्रीज. यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस के लिए ड्रॉ दैट कि अगर मैं बी को देखो इधर ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज आर बी एंड दिस इज आर ए, सॉरी, जस्ट फॉर रेफरेंस, समझ गए ना. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कैसे ए और बी के बीच का एंगल निकालते हैं. सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, ये बी का वैल्यू क्या रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी 113, नॉट 103, दिस इज 113. Okay, I'll solve question number second using one more method. तो the method is this one कि ये देखो कि ये दोनों वेक्टर्स को what I'll do is कि दोनों वेक्टर्स को मैं ओरिजिन पे ले आता हूँ. I'm going to scale down a little. ये दोनों वेक्टर्स को मैं ओरिजिन पे ले आया. तो देखो जो अपना बी वेक्टर है, बी वेक्टर देखो ऐसा है, दिस इज आवर बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर को देखो कैसा रहेगा. I think this one would be easier to understand. A वेक्टर ऐसा है. What I did is कि मैंने दोनों के टेल्स को, दोनों वेक्टर्स के टेल्स को ओरिजिन पे ले आया. Now you can see that this angle is given as 53 and this angle is given as 30. तो देखो कि ये टोटल एंगल कितना हो गया. What is the smallest angle between them? This right here is the smallest angle between them. ये कितना हुआ, theta is equal to 150, sorry 113, या फिर एक मिनट, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60. तो व्हाट्स द टोटल एंगल बिटवीन देम, देखो व्हाट इज द टोटल एंगल बिटवीन देम. देखो ये जो टोटल एंगल है वो कितना है, इट इज थीटा इज इक्वल टू 53 प्लस 60, इसलिए 113 डिग्रीज हुआ. आई होप अभी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2. ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. ठीक है, लेट्स से कि ये ग्राउंड है, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, ओके, एंड there is an inclined plane, एक वेज है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन वेज है, like this. All right, now
let's say that this angle is 27 degrees and this angle is 53 degrees. All right. Now we have two particles. One particle is moving up. There are two particles. देखो, particle A and B. Particle A and particle B. And इन दोनों का जो वेलोसिटी वेक्टर्स है, एक का वेलोसिटी वेक्टर है ऐसा, एक मिनट, यूजर्स थिनर जैसा, एक ऊपर जा रहा है और दूसरा जो है वो नीचे आ रहा है. ओके, सो इसको मैं बोल देता हूं, लेट्स कॉल दिस वन v1. Let's call this velocity of a vector का velocity, and let's call this one b vector का velocity. Okay, why don't you try this? Find the angle between, yes, you're supposed to find angle between theta between velocity a and velocity b. Okay, so how do you solve this? So what I would suggest you to do is कि एक reference frame imagine करो, ठीक है, एक vertical line और एक horizontal line. That makes it easier. इस तरह से you can see that कि our VA vector is moving upwards, right? तो ऐसे जा रहा है, and जो VB vector है it is moving downwards. I'll write VA, ये क्या है, VA vector ये ऊपर की तरफ जा रहा है, and our VB vector is moving downwards, right, like this, I think, right? This is VB. Now अब देखो, तुमको ये दिख रहा है कि VA is making, दोनों का horizontal से एंगल दिख रहा है तुमको. You can see that कि horizontal से VA is making an angle of 27 degrees. देख सकते हैं, this one is 27 degrees. ठीक है, and VB is making an angle 53 degrees. Why? How do you know that? अगर तुम इसको एक्सटेंड करते हो, जस्ट एक्सटेंड दिस अ लिटिल, या फिर इधर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दो, ये दिख रहा है कि ये एंगल कितना है, 53 है, तो ये एंगल कितना होगा, 53. तो व्हाट इज द टोटल एंगल बिटवीन देम? थीटा शुड बी इक्वल टू 80 degrees. Okay, so I guess you understood this one. Okay, that was method 1. I'll show you one more method. This is method 1. Now method 2. Method 2 में क्या कर सकते हैं कि can you see this particular point, this top point, let's call this P. तो ये एंगल देख सकते हैं कि this is equal to 100. This angle is 100. तो अगर ये 100 degrees है तो देखो, just for reference I'm going to draw this line. ये देखो, sorry, point P and this one. Okay, तो इधर ये जो वेक्टर है अपना, इधर से अगर देखो तो ये जो वेक्टर है वो ऐसा है, कौन सा, VA को मैंने एक्सटेंड कर दिया, VA को एक्सटेंड करके ऐसे लिया, एंड अपना जो VB वेक्टर है, VB वेक्टर देखो ऐसा है, डाउनवर्ड्स लाइक दिस. I hope you understood this one right now. Okay, this is VB and this is VA and this is our point P. Just for reference, this is point P. Okay, तो
देख सकते हैं कि मैंने VA को ऊपर ले गया और VB को भी ऊपर ले गया. Now you can see that this angle is what? This angle is 100. So this angle should be 80. That's the answer. Next is addition of two vectors. ठीक है? This is addition या फिर to be specific sum of two vectors. Sum of two vectors. Let's first do two vectors and then we'll go to multiple vectors. All right. Now, let's say that you have two vectors. This is vector A. This is vector A. And this is vector B. ये हो गया vector B. Okay. And you're supposed to find the sum of these two vectors. Basically, you're supposed to calculate A vector प्लस बी वेक्टर. जब मैंने वेक्टर्स का सम डिफाइन किया था तो यू शुड अंडरस्टैंड, तुमने देखा था कि 4 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स वाज नॉट 7 मीटर्स. 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर्स ईस्ट वाज 7 मीटर्स ईस्ट. 4 meters east plus 3 meters north was 5 meters northeast, and then 4 meters east then 3 meters west was 1 meter east. ऐसे सब अलग अलग केसेस थे. We are going to look at vector addition. ठीक है? So to add these two vectors there are two basic ways. ठीक है? There are two ways. Method one, it doesn't matter what you are doing, उसका formula same है. तो I'm just going to show you how this can be done. तो सबसे पहले मेथड वन जो है, इट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ. ठीक है? व्हाट यू डू इन ट्रायंगल लॉ इज कि बेसिकली ए प्लस बी बोला है. ए प्लस बी, इमेजिन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है? द बेस्ट थिंग दैट यू कैन इमेजिन इज इमेजिन डिस्प्लेसमेंट. I'm not saying A and B are displacements. So I'm saying just that A and B are can be any two vectors. We are using the logic of displacement to add these two vectors. ठीक है? तो ये अपना vector A. This right here is our vector A. And this is our vector B. हम लोग क्या करेंगे? A के हेड पे B का टेल ज्वाइन कर दो. A के हेड पे B का टेल ज्वाइन कर दो. तो जो A के टेल से B का हेड होगा, that is the resultant vector. This right here. ठीक है? I'm going to write it here like this. ये this is our A vector. This is our B vector. And this right here is our A vector plus B vector. ठीक है? You just formed a triangle here. Okay? Triangle law. Now, if you could just extend this line, अगर मैं इस line को हल्का सा extend करता हूं, तो you can see that this particular angle is theta, angle between the two vectors. ठीक है? This is the angle between the two vectors. Okay? तो इसका आगे का यूसेज मैं बताऊंगा, but that is just one method. The other method is called parallelogram law. Okay? Method 2 is called parallelogram law. Okay? तो parallelogram law imagine करने के लिए the best thing that you can do is imagine forces. Imagine forces. एक चीज सोचो, मान लो तुम खड़े हो, एक हाथ को तुम्हारा एक फ्रेंड खींच रहा है, दूसरे हाथ को तुम्हारा कोई और फ्रेंड खींच रहा है, एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में नहीं, मतलब रैंडम डायरेक्शंस में खींच रहे हैं. तो तुम किस तरफ मूव करने का कोशिश करोगे, किस तरफ मूव होगे? समवेयर इन बिटवीन, राइट? तो वी आर गोइंग टू इमेजिन फोर्सेस हियर. तो फोर्सेस के लिए व्हाट यू कैन डू इज
कि दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है, दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दो। ये देखो, ये ए हुआ, एंड एक सेकंड, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस राइट हियर इज थीटा, दिस इज थीटा, है ना। अब क्या करेंगे कि एक सेकंड, ये अपना बी वेक्टर हो गया एंड ये क्या हो गया, ए वेक्टर। नाउ व्हाट यू विल डू इज कि यू गोइंग टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसे, यूजिंग दीज टू एज साइड्स, ओके। तो वी आर गोइंग टू यूज दीज टू साइड्स टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो ये अपना पैरेलल टू ए वाला लाइन हो गया। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ड्रॉ दिस। ये बी के पैरेलल वाला लाइन हो गया, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम बन गया। तो अगर एक इमेजिन करो, मान लो कि तुम यहाँ पे कहीं हो, ये ए और बी के टेल पे कहीं हो, तुम्हारा दोस्त ने ए के अलंग पुल किया, तुम्हारे दूसरे दोस्त ने बी के अलंग पुल किया, तो तुम किस तरफ पुल होगे, तुम इस तरफ पुल होगे ना, डायगोनल के अलॉन्ग। दिस राइट हियर वुड बी a plus b. This is called parallelogram law. I can clearly see that these two are the same thing. ठीक है, mathematically there is no difference, they are the same thing, but two different ways of मतलब two different ways of imagining the addition of two vectors. इनका मैथमेटिक्स सेम है, इनका जो फॉर्मूला है दे आर सेम, ओके। आई एम गोइंग टू डिराइव दैट, और जो टेक्स्ट बुक डेरिवेशन है उसके बदले मैं सिंपलर डेरिवेशन करने वाला हूं अभी तुरंत। अब देखो, जस्ट फॉर रेफरेंस, ये जो एंगल है, दिस एंगल राइट हियर, इसको मैं बोल देता अल्फा, इसको बोल देता अल्फा। तो ये एंगल भी देखो अल्फा ही है। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट अल्फा, हमें चाहिए ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए। तो जो रिजल्टेंट है इट इज ऑल्सो वेक्टर, लेट्स कॉल दिस आर वेक्टर रिजल्टेंट। एक मिनट, लेट्स कॉल दिस आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। नाउ हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या क्या चाहिए तुम्हें, एक तो इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, मैग्नीट्यूड लेंथ से मिलेगा, एंड डायरेक्शन किससे मिलेगा, एंगल से। एंगल देखो अल्फा से मिल जाएगा। इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ ए, तो अल्फा मिल गया तो डायरेक्शन मिल गया ना एक आर वेक्टर का, ठीक है। तो ये सपोज टू कैलकुलेट दिस अल्फा एंड दिस पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, ए प्लस बी का जो साइज है वो लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। लेंथ इज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट, इनफैक्ट चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले आई विल शो यू द लॉन्ग मेथड एंड देन आई विल शो यू कि कितना इजीली हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, बाय यूजिंग जस्ट वन सिंगल फॉर्मूला। तो इसको अभी कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो, आई एम गोइंग टू डिराइव दिस। तो लेट मी जस्ट सेपरेट दिस लाइन राइट हियर, इस तरह से आई एम गोइंग टू डिराइव दिस। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ, तो इसमें अपना ए वेक्टर किधर है, दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस इज आवर ए वेक्टर, एंड मैं ट्राइंगल यूज कर रहा हूं तुमको समझाने के लिए। दिस इज आवर बी वेक्टर, ऑलराइट, एंड दिस राइट हियर इज आवर ए प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर है ना, दिस इज आवर आर वेक्टर। अब मैं इधर है ना दो लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान से देखना इधर। इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं ए वेक्टर को, और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाला हूं यहां से,
देख सकते हैं. I'm going to write all the names now. This is, एक second. This is our A vector. ठीक है. This is B vector and this is our R vector. ठीक है. अब ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स के बारे में भी लिख लेते हैं. What is this angle? This angle is theta. You can see that this angle is theta and this angle is alpha. You're supposed to calculate alpha. अब तुमको गिवन क्या क्या है. ठीक है. Let's understand what's given to you. तो गिवन जो है, गिवन ये है, A is the magnitude of A vector. ठीक है. A is the magnitude of A vector. B is the magnitude of B vector. And theta is the angle between A vector and B vector. ठीक है. इन दोनों के बीच का एंगल है. अब तुमको पूछा क्या गया है, यू आर सपोज टू कैलकुलेट R. R कैलकुलेट करना, विच इज द magnitude of R vector, and alpha, which is what, direction of R with respect to A vector. A के रिस्पेक्ट में तुमको अल्फा से तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा. ठीक है. Now I'm going to name these you can see there are two triangles here. ठीक है. तो मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ. Let's say I call this P Q S, या फिर कुछ और नाम दे देता हूं. एक सेकंड ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. कंफ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पे. तो इसको नाम दे देता हूं L M N O. ठीक है. तो ये चार देख सकते हैं इसमें से. अब ध्यान से सुनना, मैं अभी नेक्स्ट पेज यूज करने वाला हूं. इन ट्राइंगल MNO, देखो, इन ट्राइंगल MNO, द स्मॉल ट्राइंगल. ठीक है. तो व्हाट इज MN अपॉन MN अपॉन MO? MN अपॉन MO क्या है? You can see that MN upon MO is cos theta, right? It is cos theta. ठीक है. Now इसका मतलब यहां से MN कितना आया? MO cos theta, MO multiplied by cos theta. यहां से MO क्या है? What is MO? MO is B, right? Length of B vector is B का magnitude. यहां से अपने को MN मिल गया B cos theta. Similarly, what is NO by MO? NO by MO, it is sin theta. तो sin theta, तो इधर से अपने को NO कितना मिला? इज इक्वल टू MO इंटू साइन थीटा. इसका मतलब NO कितना हुआ? इट इज B. अच्छा, ये कैपिटल B होगा, कैपिटल B cos थीटा, और ये क्या रहेगा? कैपिटल B sin theta. All right, we are going to use these. All right, now look at triangle. Now we'll look at the triangle. देखो, ट्राइंगल LNO. LNO, ठीक है. LNO में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो व्हाट इज LO स्क्वायर्ड? LO स्क्वायर्ड इज LN स्क्वायर्ड प्लस NO स्क्वायर्ड. ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. LN स्क्वायर्ड प्लस NO स्क्वायर्ड इज इक्वल टू LO स्क्वायर्ड. ठीक है. नाउ व्हाट इज LO? LO इज R का स्क्वायर.
r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स व्हाट, r स्क्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट इज ln। ln कितना है? ln को देखो क्या लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज lm प्लस mn का स्क्वायर्ड प्लस no स्क्वायर्ड, राइट। इसका मतलब देखो क्या हो गया, आर स्क्वायर का वैल्यू lm कितना है, व्हाट इज lm, lm इज a प्लस mn कितना है, b cos थीटा द होल स्क्वायर्ड प्लस no कितना है, b sin थीटा का स्क्वायर्ड, दैट इज आर स्क्वायर। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट्स, तो क्या आएगा देखो, a स्क्वायर्ड प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर्ड cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो लास्ट टू टर्म्स यू कैन सी दैट इट बिकम्स b स्क्वायर्ड। तो इधर से अपने को क्या मिल गया देखो, इधर से क्या मिल गया, a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो यहां से अपने को r का मैग्नीट्यूड मिल गया, r विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के एग्जाम्स के लिए, बाकी अपने को तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये क्या है, a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया, उसका मैग्नीट्यूड मिल गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है देखते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया, नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन। एक सेकंड, डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन के लिए द सेम ट्राइंगल, ठीक है, एल एम एल एन ओ के लिए देखोगे, व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा इज NO बाई LN, tan अल्फा इज NO बाई LN। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं, NO बाई LM प्लस MN, ठीक है, देख सकते हैं LM प्लस MN। अब तो इधर से देखो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा is equal to NO, what is NO, NO is B sin theta, B sin theta upon A plus B cos theta। तो देख सकते हो कि इफ यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा एंड A एंड B, यू कैन कैलकुलेट R एंड अल्फा। ओके, सो ये अपने को क्या दे दिया, डायरेक्शन। ना मैं तुमको एक और सिंपल सा चीज बताने वाला हूँ, जो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग को इतना खिचड़ी पकाने का कोई जरूरत नहीं था। अगर तुम ये देखो, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल राइट हियर, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, कैन यू सी दैट कि ये जो एंगल है, दिस एंगल राइट हियर इज पाई माइनस थीटा, इट इज पाई माइनस थीटा। तो तुमको कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल्स पता है, इफ यू हैड यूज्ड कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल्स, कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, एक ट्राइंगल के दो साइड्स पता है और उसके बीच का एंगल पता है, तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। इधर वो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। सो इस तरह से ये आ गया मैग्नीट्यूड और ये आ गया डायरेक्शन, ऑलराइट। नाउ इट डजंट मैटर कि तुमने पैरेलल ट्रायंगल लॉ यूज किया या पैरेललोग्राम लॉ यूज किया, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दीस आर जस्ट डिफरेंट ways of looking at addition of forces, sorry, addition of vectors।